میری بزرگی پر لعنت ہے کہ میری بزرگی ہے اور یوٹیوب پہ نبی علیہ السلام کے بارے میں گستاخانہ فلمیں اپلوڈ ہے، میں ایک نگاہ مار کے وہ ڈیلیٹ نہیں کر رہا. صحیح بات. تو 1.5 ارب مسلمان مل کے یوٹیوب سے گستاخانہ فلمیں نہیں ڈیلیٹ کرا سکے تو 1.5 بزرگ بھی نہیں 1.5 ارب وچ. اچھا اس کا بھی وہ جواب دیں گے، وہ کہیں گے جی وہ دیکھیں جی حکم ربی ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہیں وہ. اچھا اللہ کی یہ رضا ہے کہ گستاخیاں ہو نہ، پرانیاں گلاں پرانے بہانے. ہن پائی جیننگ دا دور ہے، ادی انجینئرنگ میں کراں گا. آپ لوگ تو پبلک کو یہ کہہ رہے ہیں جی امام مالک کا قول ہے کہ جی اگر کوئی گستاخ زندہ ہے تو پوری امت کو ہی مر جانا چاہیے. تو پھر یہی قول اپنے ان بزرگوں پہ بھی لگائیں نا. آپ کہتے ہیں دنیا کبھی غوث کتب ابدال سے خالی نہیں ہوتی، تو آپ ذرا جرت کر کے یہ بات بھی کریں کہ ایسے غوثوں اور کتبوں اور ابدالوں کو مر جانا چاہیے کہ یوٹیوب کے اوپر حضور کی ویڈیوز موجود ہیں گستاخانہ اور وہ ڈیلیٹ نہیں کروا پا رہے. ان کی بزرگی کو مر جانا چاہیے. کہیں نا ادھر تو پوری قوم کے ساتھ آپ جو کچھ کر رہے ہیں پچھلے 1.5-2 سالوں کے اندر وہ سب نے دیکھا ہے. تو کدھر کی بزرگی اور سر کہانیاں نے. اور تو ہم سچ آپ میڈیا کا دور ہے، کبھی کوئی بزرگ سامنے نہیں آئے گا. بزرگی چیک کرنے کے لیے لوگ کیمرے لے کے پہنچ جائیں گے اور پکڑی جائیں گی ساری چیزیں. یہ سب کہانیاں تھیں، کہانیاں پکڑی جاتی ہیں. پہلے تو کوئی یہ ثابت کرے کہ ان بزرگوں کے پاس یوٹیوب سے ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کا اختیار تھا. دکھاؤ وہ دعویٰ مجھے. کس بزرگ نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کے پاس یوٹیوب سے ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کا اختیار تھا؟ اور ان بابوں اور بزرگوں کے دور میں جو اولیاء اللہ گزر گئے اس دور میں تو یوٹیوب ہی نہیں تھا. تو بونگی کس نے ماری؟ جہالت بھری بات کس نے کی؟ اولیاء اللہ کی بغض میں، اولیاء اللہ سے نفرت میں، اسلام کے پلر سے جنہوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دی، دین اسلام کے لیے تبلیغیں کی اور اچھے کرداروں کے ساتھ کی، غیر مسلموں پر جن کے کرداروں سے، جن کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر کتنے ہی غیر مسلم، کتنے ہی ہندو، کتنے ہی عیسائی، کتنے ہی یہودی، کتنے ہی پتہ نہیں کتنے دوسرے مذاہب کے لوگ اسلام قبول کر گئے کلمہ پڑھ کر، ان کے کردار اور حسن اخلاق کو دیکھ کر، جو کہ آج کے اکثر مسلمانوں میں نہیں ہے. لیکن بات یہاں پر یہ ہے، یہ ایک نگاہ مارنے کے حوالے سے جو تانے دیے جاتے ہیں بزرگوں کو، اگر کوئی بھی غیر مسلم، کوئی ملحد یہی اعتراضات اللہ کے اوپر لگائے تو کیا جواب دیں گے؟ مسلمان کیا جواب دیں گے ان ملحدین کو؟ اگر وہ ملحدین یہ کہیں کہ اگر اللہ اس کائنات کا خدا ہے اور اگر اللہ کے پاس تمام اختیارات ہیں جو کہ تم مسلمان دعوے کرتے ہو، تو تمہارے اللہ نے یوٹیوب کی ساری ویڈیو ڈیلیٹ کیوں نہیں کی؟ تو کیا جواب دو گے ان کو؟ ہیں جو الزامات، جو تانے اولیاء اللہ پہ لگائے جا رہے ہیں، وہی الزامات اور وہی تانے سیم ٹو سیم پلٹ کر مولدین کی طرف سے جب اللہ پہ لگیں گے، اور وہ لگاتے ہیں، انہیں شے ملتی ہے، وہ لگاتے ہیں، یہ سب سن کے دیکھتے ہیں، وہ بھی سنتے ہیں، انہیں بھی دکھتا ہے. ہاں جب وہ جو لاجک، جو انجینئرنگ اور لاجک اولیاء اللہ کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے، وہی انجینئرنگ اور لاجک اللہ کے بھی خلاف جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یوٹیوب پہ ویڈیوز موجود ہیں گستاخانہ، کیونکہ یوٹیوب پر مولدین ہی گستاخیاں کر رہے ہیں بہت زیادہ اللہ کے خلاف اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلاف. تو ان کی تو بہت ساری ویڈیو ڈیلیٹ ہی نہیں ہوئی، اللہ نے تو ڈیلیٹ نہیں کی. تو اگر کسی کا یہ کلیم ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اولیاء اللہ نے، چونکہ پہلے تو بات اولیاء اللہ نے دعویٰ کیے نہیں نا اس طرح کا، یوٹیوب تو تھا ہی نہیں، اور اگر 21ویں صدی کے اولیاء اللہ کو لے لو جو جہاں بھی ہیں چھپے ہوئے یا کچھ بھی کر رہے ہیں، تو دکھاؤ کس نے کلیم کیا کہ اس کے پاس یوٹیوب سے تمام ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کا اختیار ہے. پہلے تو دعویٰ دکھاؤ. جب کوئی دعویٰ کرے گا تو اس کا پریکٹیکل ٹیسٹ لیا جائے گا نا. کسی کو کچھ بھی اختیار اللہ اگر دے دے، کسی کو زلزلہ لانے کا اختیار دے دے، وہ زلزلہ لائے گا. کسی کو ہوا میں اڑنے کا اختیار دے، وہ ہوا میں اڑ سکتا ہے، وہ دوسرا کام نہیں کرے گا. ویڈیو گیمز کھیلیں کبھی، جس کریکٹر کے پاس جو اسکل یا ایبلٹی یا ٹیلنٹ اور جو بھی ایبلٹی کچھ ہوتا ہے وہ اسی کو یوز کر سکتا ہے، اسی ویپنس کو، اسی آئٹمس کو، انہی ایکوپمنٹس کو، انہی بفس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتا. جو دیا ہے وہی ہے، وہی استعمال کرنا ہے، جو اس کے کریکٹر کا پارٹ ہے، جو اس کو گفٹ مل گیا یا اس نے اپ گریڈ کر لیا یا اس نے پرچیز کر لیا یا اس نے ٹریننگ لے لی، وہی ملے گا اس کو. ریئل لائف میں بھی سیم ٹو سیم ہوتا ہے. جس مسلم کے ساتھ اللہ جو معاملہ رکھنا چاہے وہ اسے دیتا ہے، جو اسے اختیار دینا چاہے اللہ دیتا ہے. اگر اللہ نے کسی کو یوٹیوب سے ویڈیوز ڈیلیٹ کرنے کا اختیار نہیں دیا تو پوری دنیا کے تمام اولیاء اللہ بھی اگر مل جائیں تو یوٹیوب سے ساری ویڈیو، تو کیا ایک ویڈیو بھی ڈیلیٹ نہیں کروا سکتے اللہ کے حکم کے بغیر، اگر اللہ نے اختیار نہیں دیا اور اگر اللہ نہیں چاہتا. تو پہلے تو یہ بتاؤ کہ اگر اللہ ہی نے
यूट्यूब से तमाम वीडियो डिलीट नहीं की जो गुस्ताखाना हैं, तो क्या इससे ये साबित होगा कि अल्लाह के पास कोई इख्तियार नहीं है? हैं? जो लॉजिक ओली अल्लाह पे लगाई जा रही है, क्या मुरीद पर जब ये लॉजिक अल्लाह के खिलाफ लगाएं तो मानोगे? नहीं मानोगे, वहाँ आए बाएँ शाएँ करेंगे। हाँ, लॉजिक देंगे, लॉजिक। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि यूं हो यूं हो यूं। मुसलमानों के ऊपर, मजलूम मुसलमानों पर दुनिया भर में जुल्म हो रहा है, कुफ्फार की जानिब से जुल्म व सितम हो रहा है। तो मुसलमानों के जो एटमी मुल्क और दीगर तमाम अफवाज हैं और कुछ हैं, उधर से उनके खिलाफ क्या हुआ कि जी दुनिया में सारे मजालिम रुक गए हो? रुके? नहीं रुके ना। तो अगर मुसलमान ममालिक के पास फौजें हैं, हथियार हैं, सब कुछ है, और उन्होंने उसको इस्तेमाल नहीं किया, इख्तियार है ना, पावर भी है, सब है, तो क्या उससे ये साबित हो गया कि उनके पास कुछ है ही नहीं? इससे ये भी साबित नहीं होता। तो ये लॉजिक भी फेल है। किसी के पास हो और वो इस्तेमाल ना करे तो कोई हिकमत है, किसी के पास कुछ होता है और वो इस्तेमाल ना करे तो उसकी हिकमत है, वो नहीं कर रहा, कोई वजह है। और यूट्यूब पे सारी वीडियो, तो क्या पूरा यूट्यूब को ख़त्म करके फना कर दे? अल्लाह के पास ये इख्तियार है, अगर वो नहीं कर रहा तो कोई हिकमत है, कोई वजह है। अल्लाह ने इंसान को भी कुछ इख्तियारात दिए हैं, ज़मीन पर भेजकर खलीफा बनाया उसने इंसान को अपना, जिन्नात के मुकाबले पे, फरिश्तों के मुकाबले पे, तमाम दीगर मखलूक़ात के मुकाबले में इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात, और खलीफा बनाया। पता नहीं क्या कुछ दिया हुआ है। और देख लो दुनिया में जो फिजिकल एफर्ट्स करते हैं, कुछ से कुछ हासिल कर लेते हैं, जितनी मेहनत करते हैं हासिल करते हैं, उनको मिलता है वही सी को जो कोशिश करता है। जो जिस लाइन में कोशिश करता है उसको देता अल्लाह ही है, चाहे गैर मुस्लिम करता है या मुस्लिम करता है। और औलिया अल्लाह के खिलाफ ही क्या जाना? क्या दुनिया भर के अंदर मुसलमानों में बेहतरीन टॉप नॉच हैकर्स नहीं बैठे हुए? टॉप नॉच हैकर्स, बड़े से बड़े माहिर तरीन हैकर्स, कहाँ हैं वो सब? वो सारे डिलीट करा दें, वही डिलीट कर दें। चलो, पूरे यूट्यूब चैनल से गुस्ताखाना वीडियो वो क्यों नहीं डिलीट करते? क्या उनके पास इख्तियार नहीं है सिस्टमों को हैक करने का और क्रैक करके और तोड़ फोड़ कर देने का? अगर है तो क्यों नहीं कर रहे? कर दें। और अगर नहीं कर सकते तो फिर मानोगे कि उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, और मानोगे कि वो हैकर नहीं है? क्या उनके हैकर होने का इनकार कर दोगे इस बात पर? अगर वो ना कर सके, करना भी चाहे और ना कर सके, एफर्ट्स भी करे और ना हो सके, तो क्या उनके हैकर होने का इनकार कर दिया जाएगा? जो भी उनके हैकर होने का इनकार करेगा इस वजह से कि वो ना कर सके, तो जो इनकार करेगा वो खुद सबसे बड़ा जाहिल होगा कि उसको कॉमन सेंस काम नहीं कर रहा, उसकी अकल काम नहीं कर रही कि वो क्या कह रहा है, अगले को जीरो से मल्टीप्लाई कर रहा है। सिर्फ इस बात है कि वो उसकी मर्जी का काम नहीं कर सका जो वो चाहता है। औलिया अल्लाह के खिलाफ बकवासात करने वाले, तानाजनी करने वाले जो लोग हैं, इनको ये कॉमन सेंस काम नहीं कर रहा, इनकी अकल काम नहीं करती बुग़्ज़ और हसद की वजह से कि कह क्या रही है। इनकी ख्वाहिश के मुताबिक अगर किसी मुसलमान ने कोई काम ना करके दिखाया तो ये उसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी वलायत का इनकार करेंगे, उस पर उसके खिलाफ बकवासात करेंगे और उल्टी सीधी जुबान इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उन्होंने मिरेकल डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया। इनको चैलेंज देता हूं, ये कहते हैं ना हमारे बुजुर्गों को अल्लाह ताला ने कोई खास इल्म सिखा दिया है, कोई इल्म लदुन्नी सिखा दिया है, और हमारे बुजुर्ग दिल का हाल जान लेते हैं। मैं कहना भाई दिल ते बड़ी दूर दी गल है। मैं अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फार्मूला आपको पैड पे लिख के देता हूं मशीन डिजाइन का, जिसमें कुछ अल्फाज लेटन के होंगे, कुछ फ्रेंच के होंगे, कुछ जो है वो यूनानी लैंग्वेज के होंगे। आपके बुजुर्ग ये कागज देख के पढ़ के बता दें तो मैं उनका मरीद होने के लिए तैयार हूं। सेम टू सेम जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो कुफ्फार किया करते थे ना, अब यहां मैं मुस्लिम को काफिर नहीं कह रहा, मैं मिसाल दे रहा हूं कि जो कुफ्फार करते थे अंबिया के साथ, तो उनसे डिमांड करते थे कि उनकी मर्जी के मुताबिक मौजज़ात दिखाए जाए तब उनको नबी मानेंगे। यही करते थे काफिर। जब उनके पास उनके अंबिया नबी जाके उनके पास दावत देते थे और कभी मौजज़ात भी दिखाया अल्लाह के हुक्म से, उनकी डिमांड ये थी कि हमारी वाली मर्जी के मुताबिक कोई तुम दिखाओगे तो मैं मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। और अल्लाह का तरीका कुछ और है। अल्लाह जब चाहता है तो मौजज़ा दिखाता है, अल्लाह नहीं चाहता तो कोई मौजज़ा नहीं दिखा सकता इंसान, जितना मर्जी कोई कुछ चाले, अल्लाह के हुक्म से मौजज़ा होता है। ये देखें, ये नो टेंजिबल फॉर्म में फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर को तोड़ने वाले उन्होंने मौजज़ात मांगे। नंबर 1 कि आप जमीन में चश्मा जारी कर दें। नंबर 2 खजूरों का बाग हो। नंबर 3 अंगूरों का बाग बना दें। नंबर 4 उसमें नहरें जारी फरमा दें। नंबर 5
आसमान से कोई टुकड़ा हम पर गिरा दें, नंबर 6 अल्लाह ताला और फरिश्तों को हमारे सामने ले आए, नंबर 7 या कोई सोने का घर आपके लिए बन जाए, नंबर 8 या आसमान पर चढ़ के हमें दिखा दें, और नंबर 9 आपके चढ़ने को भी नहीं मानेंगे जब तक कि आप एक किताब लेकर फिजिकली ऐसे सामने नाजिल ना हो और फिर हम वो किताब पढ़ें कि हाँ आइए जनाब अल्लाह की तरफ हो। वो कहते हैं जैसे आप कहते हो कि पहले भी कौमे आद पर कौमे समूद पर किसी पर चंगाड़ का अजाब आया, किसी के ऊपर बिजली गिरी, किसी के ऊपर आसमान से पत्थर गिरे लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर, तो तुम भी आसमान से कोई टुकड़ा हम पर गिरा के बता दो। तो किसी के कुछ ना दिखाने से या ना दिखा पाने से उसके ओहदे की नफी कहाँ से हो जाती है? हैं? अगर पाकिस्तान के मुल्क की अफवाज के पास एटमिक हथियार हो, वेपन्स हो, सब कुछ हो, डिफेंस सिस्टम मजबूत हो, हर चीज़ हो, और वो ना करे इस्तेमाल, तो क्या पाकिस्तान की फ़ौज को ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया जाएगा कि इनके पास कुछ नहीं, ये ताकत नहीं, ये बस ओहदा भी नहीं, बल्कि फ़ौज के बजाय उनको आम बंदा डिक्लेयर किया जाएगा? क्या कोई करेगा? नहीं। वहाँ अकल काम करेगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर नहीं कर रहे तो कोई वजह होगी। इतने इंटेलिजेंट किस्म के लोग बैठे, इतने ज़हीन किस्म के लोग बैठे हैं, एक से बढ़ के एक एक्सपर्ट बैठा हुआ है माइंड सेट का, कुछ तो वजह है। दे नो बेटर, यहाँ कहेंगे दे नो, उनको ज़्यादा बेहतर पता है, छोड़ो यार उनका मामला। तो अगर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर जिनके पास पावर्स हैं, इख्तियारात हैं, ताकत है, उनको इतना उनके मामले में कहा जा सकता है कि उनको कोई वजह है, मामला वो हाई लेवल से देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को। तो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर एक्सेस रखते हैं, जो अल्लाह के साथ कनेक्शन रखते हैं, या वो जो उस चीज़ों को समझते हैं जो अल्लाह ने उनको दी हुई हैं, तो क्या उनके बारे के उनकी बारी आती है तो वहाँ पे उनको अपने से नीचे देख के, नीचा दिखाने के लिए उनको ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया जाता है। कौन करते हैं? जब किताबी बने बैठे हुए हैं, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में कोई प्रैक्टिकली शोर पे शायद किया ही नहीं होगा स्पिरिचुअल लाइफ का एक्सपीरियंस, कि स्पिरिचुअलिटी है क्या चीज़, स्पिरिचुअलिटी है क्या, इस्लाम की रूहानियत है क्या, तरीक़त है क्या, कुछ नहीं पता है ऐसों को। किताबों के रट्टा लगाए हुए होंगे, खुद कुछ मिला नहीं होगा, महरूम रह गए होंगे, बड़े पड़े हुए ऐसे मुआशरे में। वो टेलीपैथी सीखने की कोशिश कर रहे हो या कोई और फील्ड कोशिश कर रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा हो, तो क्या करते हैं? गालियां देना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, झुटला देते हैं, कहते हैं ये सब झूठ है, फ्रॉड है, क्योंकि हमें नहीं मिला। उनकी अकल काम नहीं करती कि अल्लाह के हुक्म के बगैर मिलता भी नहीं है। बहुत से लोग ऑनलाइन कमाने की कोशिश करते हैं, फ्रीलांसिंग करें, बहुत कितने ही फ्रीलांसर है टॉप रैंक पहुंच जाते हैं, कमा रहे हैं हज़ारों लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं फ्रीलांसिंग से ही। ऑनलाइन अर्निंग हो रही है, दूसरी फील्ड्स भी हैं, टीचिंग भी की जा रही है, कंसल्टिंग, कोचिंग, बहुत कुछ है, डिजिटल मार्केटिंग भी है। अब वो लोग कमा रहे हैं ना, बहुत से फ्रीलांसिंग में आके फेल हो रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, हमसे नहीं कमाया जा रहा, और चीखते चिल्लाते फिरते फ्रीलांसिंग इज फ्रॉड, फ्रीलांसिंग फेक है, ऑनलाइन दुनिया में पैसा नहीं कमाया जाता, ये सब फ्रॉड है, झूठ है, ड्रामा है। क्या समझे? यही लॉजिक। अब लेजेंड से सुनो ना, इंजीनियरिंग ये सेम एक ही चीज़ है। अपने से नहीं हुआ और अपने को ना मिला, जो चाहा तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई करके कह दिया सब झूठ है, फ्रॉड है, सब कहानियाँ हैं। तो कहानियाँ हैं तो कुरान में भी बहुत सारी कहानियाँ लिखी हुई हैं जिनको गैर मुस्लिम नहीं मानते। क्या मनवाओगे गैर मुस्लिमों को? मौलुद्दीन को क्या मनवाओगे? पहाड़ से ऊँटनी निकल के आ गई थी, ये दीवार है, अभी इस दीवार से ऊँटनी निकल के बाहर आ जाए, या ये बोतल है मेरे हाथ में, ये अभी इस बोतल का ढकना खुले, इसमें से ऊँटनी निकल के बाहर आ जाए, है निकले अभी ऊँटनी बाहर, तो कहोगे वीडियो एडिटिंग है। अब तो यही दिखेगा ना, वीडियो एडिटिंग, बहुत कुछ हो जाता है वीडियो एडिटिंग इफेक्ट से, सॉफ्टवेयर्स के जरिए। अब तो मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, तो पहाड़ से क्या दीवार से ऊँटनी, अब मैं भी अगर वीडियो एडिटिंग का इस्तेमाल करना चाहूँ तो इसी दीवार से ऊँटनी निकाल के दिखा सकता हूँ। अल्लाह के फजल से इतना इख्तियार, टेक्निकल सलाहियतों की वजह से इतना इख्तियार तो है कि दीवार से ऊँटनी निकाल के दिखा सकता हूँ वीडियो एडिटिंग के जरिए। लेकिन वीडियो एडिटिंग और ओरिजिनलिटी में, रियल वर्ल्ड में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। जो स्किल रखने वाला, टेक्निकल नॉलेज रखने वाला फ़ौरन पकड़ सकता है, और वीडियो एडिटिंग का एक्सपर्ट तो फ़ौरन पहचान सकता है कि वीडियो ओरिजिनल है या फेक है। और कुछ बहुत सी वीडियो तो कॉमन सेंस से ही समझ में आ जाती है, एक आम इंसान को भी, देहाती को भी, कि ये वीडियो एडिटिंग नहीं है तो रियल फुटेज है भाई, समझ में आया। वरना तो हॉलीवुड, शॉलीवुड और बहुत सी ग्राफिक की जो क्वालिटी और जो हाई फाई कंप्यूटरों से जो कुछ हो रहा है ग्राफिक की दुनिया में, रियलिटी और फेक में भी फ़र्क करना मुश्किल है।
Running in real time thanks to Unreal Engine 4, it's getting increasingly difficult to discern the difference between these environments and real life. Here's someone who's dead set on taking polygons and making them feel real. Between the industry-leading materials work, unreasonably detailed textures, and naturalistic lighting, each frame could pass for a photograph. Sure, we've seen visuals like this in CG films, but this is all real time. इस लेवल पे काम होता है. तो मोहम्मद ज़ीशान अरशद चैनल पर जो मैरेकल्स रखे हुए ना, मैरेकल्स, वो रियल वर्ल्ड के अंदर डेमोस्ट्रेट हुए हुए मैरेकल्स हैं. मौसमों का पलट जाना मैरेकल, आंधी तूफानों का आ जाना मैरेकल, जलजलों का आ जाना मैरेकल, अल्लाह के नाम के लश्करों का आ जाना बादलों पर, दरख्तों पर. ये पीछे ही है, एक मौजूद ही है, बैकग्राउंड पे दिख रहा होगा, पड़े हुए मोहम्मद ज़ीशान से चैनल पे, देख लेना वीडियोस में. तो ये क्या हो रहा है, ये फिजिकल वर्ल्ड में ये मैरेकल्स डेमोस्ट्रेट कर कौन रहा है? लेजेंड के साथ कौन है आखिर? किसी के साथ है तो वो किसी ख्याली खुदा के साथ तो नहीं है, हकीकी खुदा है, उसकी सपोर्ट पर मदद करता है, जब चाहता है मैरेकल डेमोस्ट्रेट कर देता है, अपनी मर्जी का मालिक है. तो बात बताने की ये है कि आज 21वीं सदी के अंदर जब मैरेकल डेमोस्ट्रेट कर रहा है, वो कर चुका है, करना छोड़ो अभी कर चुका है बहुत से, तो उसको मानना नहीं है. क्या ये जो औलिया अल्लाह के खिलाफ बकवासात कर रहे हैं, क्या ये जो औलिया अल्लाह के खिलाफ दानाजानी कर रहे हैं, क्या ये जो औलिया अल्लाह के खिलाफ इतना कुछ कह रहे हैं, ये जो शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह को ले लो, अगर उनके किसी को उनके इस वाक़े पे वो है कि वो जो सूरज गर्म नहीं हुआ था तो लाहौर के अंदर सूरज ठंडा हो गया था, मैरेकल डेमोस्ट्रेट किया था अल्लाह ने, जुम्मे का दिन था, भड़कते जो तेज़ वर्ल्ड वाइड शदीद तरीन गर्मी का जुलाई 2021 का महीना चल रहा था, रिकॉर्ड गर्मी. एक तो लाहौर का मौसम ठंडा कर दिया गया अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने किया, ऐसे ही जैसा ठंडा कर दिया था. मीडिया सबूत सब रिकॉर्ड्स मौजूद है, जाओ देख लेना द गेम ऑफ लेजेंड यूट्यूब चैनल पर, क्या कुछ पड़ा है. रियल वर्ल्ड के मैरेकल्स हैं, इवेंट्स है, रियल वर्ल्ड इवेंट्स है. वी लोग तो बहुत देखा होगा, मैरेकल लोग भी देखना. मैरेकल लोग क्या होता है, लोग समझे. सूरज को ठंडा कर दिया था अल्लाह ने, इतना ज़्यादा ठंडा कर दिया था कि तपती धूप के अंदर गर्मी पता नहीं लग रही थी, कुछ की कोई असर नहीं था, बेअसर कर दिया था अल्लाह ने जिस्म को, लाहौर शहर के अंदर. और किसी को फील हुआ ना हुआ, लेजेंड पे सूरज बेअसर हुआ था, तपती, जिसमें भड़क रही थी आग जैसा गर्मी लाहौर शहर के ऊपर, जहाँ लोगों को सुकून नहीं मिल रहा था, इतना वो हशर था. सूरज के तेवर बिगड़ गए, पंजाब भर में गर्मी की शदीद लहर. दिन में चेहलुम और अटक का पारा 46 को छू गया. लाहौर वाले भी पसीने में शराबूर. दर्जा हरारत 44 रिकॉर्ड किया गया. अलग अलग मैरेकल डेमोस्ट्रेट किया अल्लाह ने जुलाई 2021 के महीने में, अलग अलग मैरेकल. पूरा महीना स्टार्ट जुलाई 2021, 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई 2021 तक. कितने? 1 से लेके आखिर तक, पूरे 1 महीने तक लाहौर शहर का मौसम पे कंट्रोल हुआ था किसी का. लेजेंड भी शामिल था इवेंट में, और जो कुछ हो रहा था वो होश उड़ाने को काफ़ी है दुनिया वालों के लिए जो औलिया अल्लाह का इनकार करते हैं. और लेजेंड तो औलिया अल्लाह से निस्बत रखने वाला एक इंसान है. औलिया अल्लाह क्या कर सकते हैं वो तो छोड़ दो, वो बहुत कुछ कर सकते हैं अल्लाह के हुक्म से. बताया ना, अब मुर्दे भी ज़िंदा हो सकते हैं अल्लाह के हुक्म से. अब मुर्दे भी ज़िंदा हो सकते हैं. किसी को ज़िंदगी वापस लेनी हो ना, जो लाशें ज़मीनों से निकलती हैं तरोताज़ा मुसलमानों की, ये भी मैरेकल्स हैं अल्लाह के. जो उनके अंदर अगर किसी को रूह वापस लौटानी हो, चाहिए हो, किसी की कब्र खुल जाती है हादसे से, बारिश से, और अगर वो चाहे कि उस प्यारे को वापस ज़िंदा करा ले, आ सकता है, वो कांटेक्ट कर सकता है मुझसे, ख़रीद ले उसके लिए, रूह ख़रीद ले, उसकी ज़िंदगी ख़रीद ले. लेजेंडरी ज़िंदगी सर्विस उर्दू में, और इंग्लिश में लेजेंडरी रिजरेक्शन सर्विस है. आ जाओ, बोलो, आ जाए, कांटेक्ट कर ले लेजेंड से. आगे समझ में क्या समझा? ये 21वीं सदी में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पत्थरों के दौर के इंसानों से बात नहीं कर रहा, जिनकी अकल काम नहीं करे कि जी वो कौन सी दुनिया की बात कर रहा है. 21वीं सदी वायरलेस के दौर में बैठा हुआ हूँ. मैरेकल क्या अल्लाह के हुक्म से होते हैं. मुर्दा जिंदा करना कौन सी बड़ी बात है अल्लाह के लिए? वो तो सारी दुनिया के मुर्दों को एक आन के आन में जिंदा कर सकता है.
وہ اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اللہ سے کروانے کے لیے کچھ طریقے ہوتے ہیں, دعا ہوتی ہے, ریکویسٹ ہوتی ہے, پروٹوکول ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں. ایسے نہیں اٹھا کے منہ اٹھا کے نہیں تو ٹھیک ہے جس کے مرے میں کر لیں اللہ سے دعا اور کروا لیں زندہ. تو کیوں یقین نہیں ہوتا کہ ویسے تو کہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, دعا سے سب کچھ بہت کچھ ہو جاتا ہے, تو کیوں نہیں دعائیں کر کے دوبارہ مردے زندہ کروا لیتا کوئی اپنا؟ کیا مسلمانوں کو منع کیا دعا کرنے سے؟ کریں سارے مسلمان مل کے دعا, جن کے مرتے جا رہے پیارے, مر گئے کورونا سے ہی کتنے مر گئے, چلو دعائیں کر کے زندہ کرا لیں وہ لوگ. نہ ہے لیجنڈ کے پاس, اگر دعا لگتا ہے کہ جی وہ ایسے کیسے روح آ سکتی ہے تو وہ کر لیں. غیر مسلموں میں تو کوئی بھی نہیں کروا سکتا, غیر مسلموں میں سے تو کوئی غیر مسلم اپنا کوئی مردہ زندہ نہیں کروا سکتا, نہ کر سکتا ہے, نہ کبھی کر سکے گا, کیونکہ غیر مسلم جتنے بھی ہوں مصنوعی خدا کے پیروکار ہیں, امیجنری گاڈز ہیں, ان کے مذاہب کینسل ہیں, منسوخ ایکسپائرڈ ریلیجنس کو فالو کر رہے ہیں وہ لوگ. مسلمانوں کے پاس ٹرو ریلیجن ہے, تو کیا ٹرو ریلیجن کیا خالی کتاب کا نام ہوتا ہے؟ کیا ٹرو ریلیجن کا مطلب ہے بس کتاب پڑھ لو؟ اسلام از اے پریکٹیکل ریلیجن. پریکٹیکلز ہیں جو کرتے ہو, رزلٹ بھی ملتے ہیں, اس کے عمل کے رزلٹ ملتے ہیں, اور آخرت میں ہی نہیں ملتے, اسی فزیکل ورلڈ میں بھی ملتے ہیں, آخرت میں تو اس سے بھی بڑھ کر ملتا ہے. تو کون سی دنیا میں جا کے اور کن کی باتوں کو لے کر, لوجک کو لے کر اس بات پر یقین کر کے بیٹھنا ہے کہ اگر یوٹیوب کے اوپر گستاخانہ ویڈیو پڑی اور اگر وہ ڈیلیٹ نہیں ہو رہی, اگر وہ ڈیلیٹ نہیں کی کسی نے, تو وہ جی سارے ہی اولیاء اللہ کے خلاف جو ہے نا کہ انہیں مر جانا چاہیے اور یہ ہو جانا چاہیے اور وہ ہو جانا چاہیے. کوئی بغض اور حسد اور کے اندر آ کے جہالت کی باتیں کرنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, لمٹ ہوتی ہے, وہ بھی کراس کر دی جاتی ہے. اور کون کراس کرتے ہیں؟ یہ قرآن و حدیث کا نام لینے والے. کیا نئی نسل کو کیا یقین دلائیں گے اللہ کے وجود پر؟ کیا اللہ کے وجود پہ, اللہ کے میریکلز پہ یقین دلائیں گے جو صرف کتابی بنانے پہ لگے ہو کر کہ کتابی؟ اسلام کا جو قرآن ہے نا, قرآن میں صرف کتاب کے اندر صرف کتابی باتیں نہیں ہیں, پریکٹیکل باتیں ہیں. اس یونیورس کی طرف توجہ دلا رہا ہے وہ اللہ بہت سی چیزوں پر جو پریکٹیکل ہیں, تھیوریاں نہیں ہیں, خالی زبانی دعوے نہیں ہیں, خالی ان کے پریکٹیکلز ہو رہے ہیں. اور بہت سے کلیمز اللہ نے کیا, ان کے بھی پریکٹیکل وہ دکھاتا ہے. ورنہ ایسے نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دکھائے گئے. کیا یقین نہیں تھا ان کو؟ کیا تھا نا یقین, کل بھی اطمینان چاہیے تھا, ریکویسٹ کی انہوں نے, اللہ نے دکھایا انہیں. اگر سوچو کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی ضرورت پڑی کل بھی اطمینان کے لیے, ماریکل کو آنکھ سے دیکھنے کے لیے, تو آج کے 21ویں صدی کے جو 5 ارب سے زیادہ غیر مسلم ہیں, جب وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہے تو ماریکل دکھائیں, اگر اللہ ہے تو یہ کریں وہ کریں, تو پھر ان کو وہ اگر جو کوئی کروا سکتا تو اللہ سے ماریکل ڈیمونسٹریٹ کروا لے, کوئی مسلم دکھائے غیر مسلموں کو. اور اگر نہیں کروا سکتا اور اگر اس سے نہیں ہو رہا تو جو ماریکل اللہ ڈیمونسٹریٹ خود کر کے دکھا چکا وہی بتا دو ان کو. چلو اس کی پریچنگ تو کرو کم سے کم. چلو اللہ نے جو لیجنڈ کے ساتھ واقعات کیے وہ چھوڑو, جو اللہ اپنے نیک مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے, جو ان کی کروڑوں مسلمانوں کی لاشیں زمین کے اندر اس نے محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہیں, بغیر کیمیکل کے, بغیر کسی مسلمان سے سپورٹ لیے, ڈائریکٹ اپنی پاور سے, اپنی طاقت سے, اپنے حکم سے, کہ ان کے باڈی سلامت ہیں, تر و تازہ ہیں ہزاروں سالوں سے. تو دنیا بھر کے غیر مسلموں کو دکھاؤ نا, دنیا بھر کے غیر مسلموں کو لائیو اسٹریمنگ کرو نا, قبریں جب کھلتی ہیں. کیوں نہیں لائیو اسٹریمنگ کر رہے؟ کیوں نہیں غیر مسلموں کو دکھا رہے ہیں؟ کیوں فاتحہ پڑھ کے درود پڑھ کے ان کو بند کر دیا جاتا ہے؟ دکھاؤ غیر مسلم ہو اللہ کی طاقت, انہیں بھی آئی وٹنس بننے تو دو تاکہ وہ دیکھیں. حضرت حذیفہ بن یمان کا واقعہ تو بڑا سنایا جاتا ہے کہ قبر کھلی تھی اور وہ عراق کا واقعہ تھا, لوگ ڈھونڈتے جی ویڈیو فوٹیج نہیں مل رہی, کیمرہ نہیں مل رہا. تو جب 21ویں صدی میں کتنے ایونٹ اللہ نے کیے, کتنی قبریں کھولی ہیں, کبھی بارش کے ذریعے, کبھی حادثات کے ذریعے, کبھی زلزلوں کے ذریعے کھول دیتا ہے وہ. اس کو پتہ ہے کہاں پہ دفن ہے اور کہاں پہ کیا ہے. کراچی میں اللہ نے بھیجا تھا آندھی طوفان اور اکھاڑ کے رکھ دیا تھا پورے قبرستان کے اندر. ایک قبرستان میں گزری کا تھا, جہاں تک مجھے یاد ہے, اکھاڑ دی تھی پوری دیواریں, جس جگہ لائن سے لگی ہوئی تھی قبریں اور وہاں پہ لاشیں محفوظ تھی. کیا کل کام کر رہی تھی اس وقت مسلمانوں کی اکثریت کی جو وہ اس ایونٹ میں تھے, کہ دکھا دیتے علماء اسٹریمنگ کر کے دنیا بھر کے غیر مسلموں کو, تاکہ وہ کلمہ پڑھتے, تاکہ وہ ریسرچ کر لیتے, دیکھ لیتے اپنی آنکھوں سے. لیکن یہ عقل نہیں کام کر رہی نا اس طرح.
कौन करे? शाकिब बाबा की रूह 500 साल गुजर गए हैं, लाइलाज मरीजों के इलाज ऑपरेशन कर रही है, मेडिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी कि ये किताबी टाइप के लोग और उनके और भी बहुत से उलमा हैं ऐसे जो बैठ के कहते हैं कि जी ऐसा कुछ नहीं हो रहा, झूठ और फ्रॉड है, रूहानी इलाज नहीं होता, रूहानी ट्रीटमेंट नहीं होता, ये नहीं होता, फलाने नहीं होता। रूहानी ऑपरेशन का इस्लाम में क्या कॉन्सेप्ट है? ये इस्लाम में कॉन्सेप्ट इंजीनियर साहब से पहले होता था, अब खत्म हो गया। हाँ, ये रूहानी बाईपास करते थे, कहते थे जी वो फलाना बंदा कितने 4 लाख रुपया जनाब लगाया जाए जाके शिफा इंटरनेशनल में या जनाब आगा खान में जाके इतना महंगा इलाज करवाएं, वो फलां बुजुर्ग रूहानी ऑपरेशन करते हैं, बाईपास कर देते हैं, लेकिन वो नहीं करते। आजकल रिटायर हो गई, रिटायरमेंट ले ली है इन्होंने। मीडिया वालों ने रिपोर्टें की है, मीडिया वालों ने प्रोग्राम किया, वहाँ के आई विटनेस हैं, लोगों के इलाज हो रहे हैं, मेडिकल ऑपरेशन हो गए, पब्लिक के हुए, पब्लिक लेवल पे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। बीबीसी ने कवरेज दे दी, उम्मत अखबार ने उस पर कितनी किस्तें शाये कर दी, लेकिन उनको एक ही चीज़ पड़ी हुई है, कुछ नहीं होता, ये फ्रॉड है। वही रट लगा के रखी हुई है जो काफिरों ने अल्लाह के खिलाफ लगाई कि वो मानते ही नहीं कि अल्लाह है, वो मानते ही नहीं है अल्लाह के बारे में। और चीज़ झुटलाना, जिसका मिजाज झुटलाने वाला हो, वो तकब्बुर से भरा हुआ इंसान है कि वो हक को देख के झुटला रहा हो, अक्ल इस्तेमाल भी नहीं कर रहा हो, इल्म भी उसके पास हो, फिर भी कह रहा है नहीं, तो वो नज़रअंदाज करता है। उसके दिल में दिख रहा होता है, वो नज़रअंदाज करता है। वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, वो अपने ही इल्म को सब कुछ कमाल समझता है। वो समझता है जितना वो इल्म, उसको जो इल्म है वो परफेक्ट है, और बाकी जो कुछ है ये सब झूठ और फ्रॉड है। तो उसी चश्मे से वो देखता है, उसी नज़र से वो देखता है। तो जब उसके सामने कोई वाक़या पेश आएगा, झुटला देगा। जब कोई उसके इल्म के मुताबिक, उसकी सीखी हुई दलील, रट्टा लगाई हुई दलील के सामने जब कोई प्रैक्टिकल आएगा तो उसको भी डिनाई कर देगा, कहेगा नहीं। मेरे इस चैनल, ये लेजेंड मोहम्मद ज़ीशान अरशद चैनल पर कितने जो नेचर के जो मैरिकल्स बहुत सारे हैं, ये डायरेक्ट ऐसे ही नहीं है मेरे पास, अल्लाह के फजल से हैं। इससे पहले तो मैं लाशों के ऊपर काम कर रहा था, लाशों पर रिसर्च थी, फ्रेश डेड बॉडीज ऑफ मुस्लिम्स। नेचर की ये जो निशानात थी, ये जो साइंस थे कि नेचर की गैर जानिबदार मखलूक़ात वगैरह अल्लाह के हुक्म से कलाम करती हैं, अल्लाह का नाम ले रही हैं, मेरे सामने भी बहुत आए वक्तन फ़वक्तन अपनी रिसर्च के दौरान जब लाशों पे काम करता रहा। लेकिन मेरे पास एक यकीन बना हुआ था कि भाई ये लाश वाली दलील सबसे स्ट्रॉन्ग है इस्लाम और कुफर के दरमियान, नहीं ये सबसे स्ट्रॉन्ग दलील है, इसलिए इसके अलावा किसी भी दलील को इस्तेमाल नहीं करना। तो वो आते थे शक्ल के सामने, गाय भी, बच्चे भी, कुछ भी, तो मिजाज एक ही था, नहीं ये कोई सबूत नहीं है, ये कोई सबूत नहीं है, बोल लिया तो क्या हुआ। ये अपनी बात बता रहा हूँ, जो आज नेचर के ज़रिए शिकस्त दे चुका तमाम मसनूई खुदाओं को, या जादुई और जो भी जितने बने हुए बैठे हुए हैं, अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मदद से शिकस्त फाश करने वाला उन्हें 21वीं सदी में वो बता रहा है। वो नेचर को इस्तेमाल कर रहा है, वो कर पहले भी रहा था नेचर, मिट्टी, लेकिन अब नेचर के दरिंद परिंद चरिंद, ज़मीन और आसमान के अंदर की मखलूक़ात है, जो भी कुछ मैरिकल्स डेमोस्ट्रेट किया अल्लाह ने, वो बता रहा है कि वो नेचर की ये गैर जानिबदार मखलूक़ातों को इग्नोर कर रहा था, एक नहीं कई साल तक। वो लाश है, लाश को इस्तेमाल करना यही सबसे पावरफुल प्रूफ है। फिर शाकिब बाबा की रूह पे आए, पता लगा रूह भी कुछ कर रही है मौत के बाद, और भी मेडिकल इलाज ऑपरेशन, यानी मुर्दा, ज़ाहिरी तौर पे मुर्दा, कोई वैसे तो शहीद है वो, लेकिन गैर मुस्लिमों के नज़दीक तो मुर्दे हैं ना, तो एक मुर्दा कब्र के अंदर दफन है, अब मेडिकल इलाज और ऑपरेशन कर रहा है। कोई मरा हुआ इंसान कभी किसी दूसरे इंसान का इलाज ऑपरेशन कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए किसी काफिर की रूह ऐसा नहीं कर रही, कोई भी मुर्दा काफिर इलाज ऑपरेशन नहीं कर सकता जिंदा इंसानों का, जिंदा लाइलाज मरीजों का। जिंदा डॉक्टर्स और सर्जन भी मरीजों को जिनको लाइलाज करार दे देते हैं उनसे नहीं होता। तो जो मर चुका, मरा हुआ इंसान गैर मुस्लिमों के नज़दीक, वो एक मुर्दा जो अल्लाह के नज़दीक ज़िंदा है, अल्लाह ने जो डिक्लेयर किया हुआ है, जो अल्लाह की राह में कत्ल होने मुर्दा ना कहो, वो ज़िंदा है, वो कर रहा है, वो प्रैक्टिकल सबूत है कि शहीद ज़िंदा है, तो चलो उसको मान लें। लेकिन नहीं, वो उनको भी झुटलाते हैं, उनको भी डिनाई करेंगे, करते हैं। क्यों डिनाई करते हैं भाई? क्यों नहीं मान रहे? इनको क्या पड़ी हुई है ना मानने की?
ان کو کیا پڑی ہوئی ہے مسلمانوں کو مس گائڈ کرنے کی. اور ماضی کا اولیاء اللہ تو چلو کتابیں ہیں نا لکھی ہوئی, نہیں نظر آ رہا, تو جو 21ویں صدی کے اندر شاہ یقیق بابا کو ہی لے لو. باقی سارے اولیاء اللہ ہیں جو ماضی کے نہیں نظر آ رہے. شاہ یقیق بابا تو پریکٹیکلی کر رہے ہیں نا. شاہ یقیق بابا پہ تو میڈیا کے جو ہے نا کہ وہ اگر میڈیا کے بھی تانے ہیں اور وہ بڑی تانے دھمکیاں وغیرہ چلتی ہیں کہ اگر یہ کیمروں کا دور ہے, اگر کوئی ایسا ہو تو میڈیا ایکسپوز کر دے گا اس کو, اور یہ کر دے گا وہ کر دے گا. میڈیا ہی نے کوریج دی ہوئی ہے شاہ یقیق بابا کو. کیوں نہیں پھر اب تو پھر کیوں نہیں میڈیا کی بات کو مان رہے؟ چلو میڈیا کی بات کو مانے نا, تسلیم کریں, یہ تسلیم کریں کہ ہاں شاہ یقیق بابا کی روح لا علاج مریضوں کے میڈیکل علاج اور آپریشن کر رہی ہے. اگر یہ سچے ہیں تو کریں تسلیم, میڈیا کو مان لیں, میڈیا کی خبروں کو مانیں, میڈیا کے ثبوتوں کو مانیں, بی بی سی کی رپورٹ کو مانیں, امت اخبار کی رپورٹ کو مانیں. کیوں جھٹلا رہے ہیں؟ دال میں کچھ تو کالا ہے, وہ کالا بتا رہے ہیں نا لیجنڈ. وہ کالا کیا ہے؟ وہ بغض ہے, حسد ہے, جلن ہے اولیاء اللہ کے خلاف. اپنے یقین کی کمی ہے, میریکل نہیں ہو سکتا, کہانیاں ہیں, ہر چیز کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دو. صحابہ کے ذریعے جو میریکلز ڈیمونسٹریٹ کیے اللہ نے, اولیاء اللہ کے ذریعے جو اللہ نے میریکل ڈیمونسٹریٹ کیے, اور شہداء اسلام کے ذریعے جو اللہ نے میریکل ڈیمونسٹریٹ کیے, اور جو لیجنڈ کے ذریعے بھی اللہ نے میریکل ڈیمونسٹریٹ کیے, نشانیاں بنا دی, تو زیرو سے ملٹیپلائی کر دو ان کو. کیوں؟ کیونکہ اپنی کھوپڑی میں فٹ کیا ہوا ہے نا کہ میریکل تو صرف انبیاء سے ہوتے ہیں اور ہو نہیں سکتے. میریکل اللہ کرتا ہے اور وہ کرتا رہتا ہے. وہ چاہے اور انبیاء کو یوز کرے, چاہے انسان کو یوز کرے, چاہے نیچر کی مخلوقات کو یوز کرے, اللہ استعمال کرتا ہے. کسی کے بھی ذریعے میریکل ڈیمونسٹریٹ کر دیتا ہے. اس کی یہ مخلوقات, اس کے ہیں سارے لشکر. ابابیلوں کے ذریعے جو ہاتھیوں کا لشکر تباہ کر سکتا ہے, وہ کیا تھا؟ اس کو کہیں گے میریکل ہوا. اللہ نے میریکل کس کے ذریعے ڈیمونسٹریٹ کیا؟ ابابیلوں کے ذریعے کیے نا. اگر ہوا سے تو پتھر نہیں گرے تھے اچانک کنکریاں آ کے ہاتھیوں پر. پڑھا سنا ہے یہی جاتا ہے مسلمانوں کو, جی ابابیل آئے تھے تو کسی ذریعے سے میریکل ڈیمونسٹریٹ کیا نا. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا جاتا ہے کہ وہ سمندر کے ٹکڑے ہوئے تھے, کہ ڈائریکٹ ہو گئے تھے 2 ٹکڑے. کیا مارا تھا وہاں پہ سمندر پہ؟ کیا سنایا جاتا ہے؟ عصا مارا تھا نا, ڈائریکٹ ہو جانا چاہیے تھا نا. تو بیچ میں ذریعہ کیوں آیا؟ کسی چیز کے ذریعے کیوں ہوا؟ اس اسٹک کے, عصا کے ذریعے سمندر کے ٹکڑے ہو گئے. ہاں, تو اسٹک تو ایک معمولی سی, عصا اور اسٹک جو ہے وہ ایک معمولی سی چیز ہے. انسان تو ایک مخلوق ہے, اشرف المخلوقات ہے. اگر لکڑی کے ذریعے, پرندے کے ذریعے اللہ میریکل ڈیمونسٹریٹ کر سکتا ہے تو انسانوں کے ذریعے بھی کر سکتا ہے اپنے بندوں میں سے جس سے وہ چاہے. اللہ کی مرضی پہ ہوتا ہے. کسی کی دعا پر وہ میریکل ڈیمونسٹریٹ کر دیتا ہے, دعا کرتا ہے کوئی اور ہو جاتا ہے کام. کتنے لوگوں کے ساتھ میریکلس ہوتے ہیں زندگی کے اندر, بہت سارے. ہاں, نبیوں کا معاملہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے, ان کا معاملہ ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. وہ تو انہیں تو نشانیاں باقاعدہ دی جاتی ہیں خصوصی طور پر, جو کلیئر کٹ الگ چیز ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف انبیاء سے منسوب کر دیا ہے کہ بس معجزات تو صرف نبی سے ہوتے ہیں. یہ میریکل لفظ معجزہ اور میریکل, اور پھر اس کو کرامت اور معجزے کے اندر رکھ کے تفریق کرنا اور وہ لوگوں کو بتانا یہ الگ ہے وہ الگ ہے. ارے بھائی میریکل ہے, جو کچھ اللہ کے حکم سے میریکل ہوتا ہے, بس دیٹس اٹ. اٹس ناٹ اے میجک. میجک از اے ڈفرنٹ تھنگ, میریکل از اے ڈفرنٹ تھنگ. جی فلاں کے ہاتھ پہ ہوگا تو میریکل ہے, فلاں کے ہاتھ پہ ہوگا تو وہ کرامت ہے. لفظ بنا دیے, ایجاد کر دیے بس اٹھا کر, اور کنفیوز کرنے کے لیے عوام کو. اب چودراہٹ بھی تو رکھنی ہے. ایک سمپل چیز ہے, اللہ کا فعل ہے, اللہ جب چاہتا ہے کچھ بھی کر دیتا ہے, خلاف نیچر, خلاف قانون قدرت, اور وہ میریکل ہو جاتا ہے. نیچر کے لشکروں کے ذریعے اس نے بلوا کے دکھا دیا اپنا نام. یوٹیوب کی ویڈیو ڈیلیٹ کر کے نہیں دکھائی اللہ نے اس طرح. ہاں, اس سے اس طرح کا ایونٹ دیکھ لو, ابھی ریسنٹلی ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے. فیس بک کو دھچکا پڑا تھا, کتنے بلین ڈالر کا جھٹکا پڑا تھا, ڈاؤن ہوا تھا. پڑھ لینا, اسٹڈی کر لینا فیس بک کے حوالے سے. اس کے پیچھے کون تھا, اس کے پیچھے اس ایونٹ پہ اس سے ریلیٹڈ لیجنڈ کے ساتھ کچھ کیا تھا غیر مسلموں نے. فیس بک کی انتظامیہ نے, فیس بک کے سسٹم نے لیجنڈ کے ساتھ کچھ کیا تھا. تو اللہ کے حکم سے پھر فیس بک والوں کو
झटका दिया गया अल्लाह के हुक्म से, उन्हें उनकी थोड़ी सी औकात दिखाने के लिए कि वो टेक्निकल एक्सपर्ट भी है अल्लाह, ही हैज़ फुल टेक्निकल नॉलेज। अल्लाह ही ने पूरी कायनात क्रिएट की है, सारे टेक्निकल फिजिक्स साइंस और ये जो कुछ पढ़ाए जाते हैं ना साइंस के नाम पे, साइंस ये सब अल्लाह ही के उलूम में से है ना, जितना उसने सिखाया सीख लिया इंसानों ने। तो अल्लाह को खूब पता है कौन से नेटवर्क को कहाँ से चेंज करना है, कौन से तार को छेड़ देना है, कौन सी हार्ड डिस्क को डैमेज कर देना है, कौन से वायरलेस को ख़राब कर देना है। अल्लाह को ये सारे एक्सेस हैं अल्लाह के पास, और अल्लाह जब चाहे कहीं भी चाहे कुछ भी चाहे कर सकता है, टेक्निकली तौर पर भी। ही इज़ अल्लाह, टेक्निकल नॉलेज भी उसके पास, समझे। ही इज़ अल्लाह, अल्लाह बहुत कुछ कर सकता है। सिर्फ अल्लाह जो है वो ये नहीं कि खाली वो जी दुआ करो तो पहाड़ की ऊँटनी ही आएगी, और दुआ करो तो जी वो आसमान से खाना ही लेकर आए फरिश्ते हैं, दुआ कर दो तो बस मुझे को अच्छी सी नौकरी मिल जाए, छोकरी मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, मेरे मसले मसाइल दूर हो जाएं, सदके खैरात कर लूँ मैं, मेरे ऊपर मुसीबत ना है। खाली यही काम नहीं है, और भी बहुत कुछ काम करता है अल्लाह। सो अगर अल्लाह कोई काम नहीं कर रहा और अगर वो यूट्यूब की वीडियोस डिलीट नहीं कर रहा तो इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह के पास कोई इख्तियार नहीं, अल्लाह के पास पूरा इख्तियार है। और अगर औलिया अल्लाह भी नहीं कर रहे यूट्यूब से वीडियो डिलीट, तो एक तो ये कि उनके पास कोई इख्तियार नहीं है इस तरह का, तो नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते। और अगर वो नहीं कर पा रहे, बिलफर्ज के वो दुआ करें और अल्लाह ना करे, वो चाहें कि ऐसा हो जाए और अल्लाह ना चाहे तो ना, तो नहीं होगा। तब भी इससे औलिया अल्लाह पे तो कोई फिर भी उंगली उठाने का हक नहीं किसी को, ना वो जीरो से कोई मल्टीप्लाई हो सकते हैं। वो हैं जो हैं, जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी है वो हैं वो जो हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार को ले लो, अभी को कितने अरसे पहले की बात है, पता नहीं कितना अरसा हो गया, जब उधर इराक में बम वगैरह मारे गए तो बड़ी इसके ऊपर भी बड़ी तनकीदें हुई थी ना। आप जब कब्र से निकल के पुलों पे जाके बम पकड़ते थे, अब तो आपके मज़ारात पे बम ठोक के चले गए, अब आपसे क्यों नहीं पकड़े जाते? तो ये एहतजाज मेरे भाइयों जो करना है अपने बुजुर्गों से जाके एहतजाज करें। ये तहफ़्फ़ुज़ औलिया कॉन्फ्रेंस आपने करनी है तो औलिया की बात तो अब आपको खुद करनी पड़ रही है। दूसरों की मदद करने के हवाले से कि वो मदद करते हैं, फरियाद सुनते हैं और ये और वो, अपने ही मज़ार पे उनके बम पड़ गया तो लो फट गया। और कैसे फट गया? बम फटना ही नहीं चाहिए था। फिर वो किस्से सुनाए जाते हैं कि जी वो फला बुजुर्ग बम पकड़ते थे तो उन्होंने क्यों नहीं पकड़ लिया। अजीब बेतुकी बातें। एक का कंपैरिजन दूसरे से करा के दूसरे को नीचा दिखाना, तीसरे को ऊपर उठा देना, उसको नीचे गिरा देना। जहालत है ये, जहालत है, जहालत। ये कहते हैं कि वो वही वाली बात, जिसको जिस फील्ड का इल्म ना हो तो उसमें बकवास क्या करेगा अगला इंसान, क्या बकवास कर रहा है? उस फील्ड का इल्म नहीं है उसके पास तो बोल कैसे रहा है फिर वो, जब उसे पता ही नहीं कि उस फील्ड में होता है क्या है, क्या क्या मुमकिन हो जाता है और क्या नहीं होता और क्या उसूल व कवानीन है। इनको चैलेंज देता हूं। ये कहते हैं ना हमारे बुजुर्गों को अल्लाह ताला ने कोई खास इल्म सिखा दिया है, कोई इल्म लदुन्नी सिखा दिया है और हमारे बुजुर्ग दिल का हाल जान लेते हैं। मैं कहना भाई दिल ते बड़ी दूर दी गल है। मैं अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फार्मूला आपको पैड पे लिख के देता हूं, मशीन डिजाइन का, जिसमें कुछ अल्फाज लेटन के होंगे, कुछ फ्रेंच के होंगे, कुछ जो है वो यूनानी लैंग्वेज के होंगे। आपके बुजुर्ग ये कागज देख के पढ़ के बता दें तो मैं उनका मुरीद होने के लिए तैयार हूं। लेकिन नहीं बोलना है। आलिम फाजिल भी तो खुद को दिखाना है ना आवाम के सामने कि सब कुछ आता है जी, और तो कोई कुछ है नहीं। तो मैं यहाँ बैठ के जो है वो कुरान और हदीस के रेफरेंस नहीं दिखा रहा। जो बातें मैं बता रहा हूँ ये कॉमन बातें हैं, बहुत सी लॉजिकल बातें हैं, थिंकर्स आराम से समझ सकते हैं, बेसिक चीज़ें हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। इसके लिए रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं समझने के लिए, ठीक है। और जो बताया है गूगल यूज़ करो, कुरान में सर्च कर लेना क्या क्या वाक़या आते हैं, कौन सी चीज़ें हैं, पता लग जाएगा। दैट्स इट। अब अगर यूट्यूब से अगर अल्लाह चाहेगा तो अल्लाह यूट्यूब वालों के साथ कुछ ऐसा कर सकता है और वो ऐसा कर देगा अगर वो चाहेगा कि यूट्यूब पर जो गुस्ताखाना वीडियोस पड़ी हैं या जो गुस्ताखाना वीडियोस के हवाले से जो ताने दिए जाते हैं वली अल्लाह को, तो अगर अल्लाह चाहेगा तो यूट्यूब की वीडियोस या यूट्यूब के सिस्टम के साथ भी कुछ कर देगा। और जब ऐसा होगा तो अल्लाह के हुक्म से होगा और अल्लाह कर देगा। और अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये याद रखना बस। आज की तारीख के साथ, कौन सी तारीख भी सुन लो, 12 फरवरी
2022 शाम के 5 बजने में तकरीबन 12-13 मिनट। कितने? 12-13 मिनट है। ये याद रखना, लेजेंड ने बता दिया, अगर अल्लाह चाहेगा तो वो ये भी कर सकता है, और अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अब क्या है इसके अंदर है, बताया तो सही, सारे इख्तियार अल्लाह का है। अल्लाह करता है तो होता है, अल्लाह नहीं चाहता तो नहीं। चाहे तुझे क्या कहूँ,